صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، عزیز و دوستوں اور بزرگوں، آج آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے نصف شعبان کی رات، یعنی جسے ہم شب برات کہتے ہیں. بہت سارے حضرات تو شب برات کے پوری طرح انکار کرتے ہیں. بہت سارے حضرات ایسے بھی ہیں جو ان احادیثوں کو ضعیف قرار دیتے ہیں. ماہ شعبان میں جو ایک بابرکت رات ہے جسے شب برات یا لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے، یہ عظیم الشان رات ہے. 16 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین علیہم اجمعین سے روایت منقول ہیں. شب برات کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات جس میں گناہ گاروں کی مغفرت کی جائے. اگرچہ سند کے اعتبار سے کچھ روایتیں کمزور ضرور ہیں، لیکن جب کچھ شواہد اس کے موجود ہیں تو حسن لغیرہ کے مرتبے کو پہنچ گئی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. مشرک مسلمان بھائی سے بغض و عداوت رکھنے والے کے سوا تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اس حدیث کو بیہقی نے شعب الایمان میں اور علامہ ہیثمی رحمہ اللہ نے مجموع الزوائد میں نقل کیا ہے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی بے شمار بندوں کی جو ہے مغفرت فرماتے ہیں اس رات. اور ہمارے اسلاف و اکابرین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ جب شب برات کی رات آتی ہے تو رات بھر نفلیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد والے دن میں روزے رکھتے ہیں، اور 15 شعبان کی رات میں قبرستان کو جاتے ہیں اور امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مرحومین مرحومات کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہاں زیارت کرتے ہیں. تو اگرچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں اگرچہ کچھ لوگوں نے کمزور ضرور کہا ہے، لیکن ان کے شواہد وغیرہ کی وجہ سے حسن لغیرہ کے درجے کو یہ حدیث پہنچ گئی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ تقریباً 16 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس رات کی عظمت اور فضیلت ثابت ہے، لہذا کیسے اس کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جتنا ہو سکے اس رات میں عبادت کریں. اگرچہ اس رات کی عبادت واجب نہ ہو، فرض نہ ہو، لیکن عام نفلوں کے اعتبار سے درجہ بڑھا ہوا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں عبادت کیا کرتے تھے، تو لہذا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، فضیلت ضرور ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نصف شعبان
शाबान की 15वीं तारीख की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे शरीफ में तशरीफ़ लाए। थोड़ी देर के बाद अपने कपड़े उतारें, फिर कुछ देर के बाद कपड़े पहन लिए और हुजरे से बाहर गए। मैं भी नज़र रखी हुई थी। मेरे अंदर गैरत आई कि चूँकि बारी के दिन मेरे पास हैं, अब कहाँ कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरे अज़वाज मुतहरात के पास चले गए हैं। मुझ में गैरत आई, मैं भी आपके पीछे पीछे चल दी और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखी, नज़र पड़ी कि आप जन्नतुल बकी में मुसलमान मर्द और औरत और शुहदा के लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। बहुत देर तक गुजरने के बाद आपके आने से पहले ही मैं लौट गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने लगे। तो जब मैं कमरे में पहुंची तो मैं जिस हाल में सोई हुई थी उसी हाल में, लेकिन सांस फूल रहा था, मेरा सांस फूल रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये महसूस किए। बहरहाल मैंने पूछा कि मुझे ये बात समझ में आई कि शायद आप मुझे छोड़कर किसी दूसरे अज़वाज मुतहरात के पास गई हैं, लेकिन आप तो आखिरत के कामों में, भलाई के कामों में मसरूफ़ थे और मैंने तो ये समझे कि आप दुनियावी कामों में मसरूफ़। गोया कि मैं दुनियावी कामों में मसरूफ़ और आप आखिरत के कामों में मसरूफ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या तुम्हें ये ख्याल है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल तुम्हारे हक़ तलफ़ी करेंगे, तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करेंगे? दरअसल ये रात अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार दोज़खी की मग़फ़िरत फरमाते हैं और कबीलाए क़ल्ब की जो बकरियां हैं उनके बालों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। तो बहरहाल इससे हमको ये बात मालूम हुई कि इस रात की फजीलत है और वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शाबान का महीना मेरा है, शहरी फरमाया। इस रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा इबादतें फरमाते थे, यानी रमज़ान के बाद अगर बहुत ज़्यादा इबादत करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो माह शाबान की, और उसी में ये रात है। तो लिहाजा मुहद्दिसीन का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि अगर कोई रिवायत अपने सनद के एतबार से ज़ईफ़ हो तो उसके ज़रिए से अगरचे मसाइल बयान ना किए जाएं, लेकिन फ़ज़ाइल में वो रिवायतें चल जाती हैं। और एक दो नहीं बल्कि मैंने जैसा कहा कि 16 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से साबित है, तो लिहाजा इसकी इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। बस हमें ये चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में इबादतें की हैं और उसके बाद वाले दिन में रोज़े रखे हैं, तो हमें भी रखना चाहिए। इबादतों में रात को शब बेदारी करना चाहिए। और ये हदीस में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब ये रात आती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शब बेदारी फरमाते थे, इबादत करते थे, और हम लोगों को भी शब बेदारी के लिए और इबादत के लिए ताकीद किया करते थे। लिहाजा इस रात इबादत रियाजत में मगन होना चाहिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छे नेक ज़िक्र और अज़कार, तिलावत कुरान और जो चीज़ें नेकी के कबील से हैं उन चीज़ों को अपनाना चाहिए। मुसलमानों को इस तरह इस रात को शब बेदारी में गुजारना चाहें कि कोई मुनकरात ना हो, कोई गलत काम ना हो, कोई गुनाह के काम में मुलविस ना हो, खेल कूद लव लाइव में मशगूल ना हो,
दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाएं, किसी तरह किसी की ईजा रिसानी के काम ना करें। इन सारी बातों को हमें मलहूज रखना चाहिए। मैं सिर्फ ये समझे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की अजमत और बुजुर्गी को बयान की है और आपने अमल किए हैं, लिहाजा हमें भी अमल करना चाहिए। और जितने भी खुराफात हैं, मुनकरात हैं, लगवियात हों, इन सारे चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए। और अपने नौजवान बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को और दूसरे जो हजरात ऐसी रातों को सिर्फ शब-ए-दारी समझते हैं और इबादत और रियाजत के काबिल नहीं समझते हैं, ऐसे हजरात को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो हदीस में आए हैं सिर्फ और सिर्फ इबादत और रियाजत के लिए है, ना कि दूसरे कामों के लिए। दूसरे कामों में दूसरे अय्याम में लोग तो मशगूल होते ही हैं। फिर इस रात की अजमत और बुजुर्गी का क्या है, इसके बारे में कौन सोचेंगे, इसमें इबादतें कौन करेंगे। हमें चाहिए कि हम इस रात की खूब कदर करें, इसकी अजमत और किबरियाई और बुजुर्गी को हम समझें और उसके मुताबिक जितना हो सके हम इबादत और रियाजत करें। और अगर उठता जाए इबादत में दिल ना लगे बस उस हो जाए, ताकि कम से कम फजर की नमाज बाजमात हम अदा कर सकें। और अगर यूं ही इबादत और रियाजत वगैरह में भी ना हो, गपशप और दूसरे मजालिस में हम पूरी रात गुजार दें, कभी ऐसा होता है कि फजर से पहले नींद लग जाती है और वो फजर की जमात में भी पहुंच नहीं सकते, यहाँ तक कि नमाज से फजर फौत हो जाती है। तो खुदा ना खास्ता हमारा हाल ऐसा ना हो, हमें इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। और बाज़ इलाके में, बाज़ महल्ले में ये भी है कि शब बारात की रात में इबादत तो दूर की बात है, तरह तरह के अक़साम के खाने तैयार होते हैं, हलवा, शेरनी और पुलाव, बिरयानी वगैरह। और समझे जाते हैं शायद कि इस दिन के लिए, इस रात के लिए शायद यही चीज़ खाना मसनून है। सहाबा किराम के गोया के तरीका है, सल्फ़ सालेहीन का तरीका है, हालांकि बिल्कुल नहीं है। ये बेजा बातें हैं। रोटी, हलवा, जो चीज़ें बनाते हैं इसी को समझते हैं कि गोया कि ये कोई रिवाज है या गोया कि इस्लामी कोई अहकाम में से एक हुक्म है, हालांकि ऐसा कोई नहीं, इन चीज़ों का कोई वजूद नहीं है। लिहाजा अगर ये रात हमें मुयस्सर हो, अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में मुकर्रर फरमाए, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। इबादत, रियाजत, नमाज, तिलावत, ज़िक्र अज़कार में हम सब जो है इसमें हिस्सा लें। जब तक अल्लाह ताला ने तौफीक दी है इबादत करे, फिर जब नींद का गलबा हो जाए तो फिर जाके वो आराम फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को शब बारात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हर किस्म के खेल कूद, लगवियात, गपशप और जो है खेल कूद वगैरह से अल्लाह ताला हम सबों को परहेज करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु